अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर पढ़ा था दैट वाज अबाउट रेप्लिकेशन। तो जैसे आप सबको मालूम है कि रेप्लिकेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में चूँकि हम डील कर रहे होते हैं आरएनए के साथ, एमआरएनए के साथ, तो हमारे पास एमआरएनए बन के आता है। तो आरएनए के बारे में हम आज स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि आरएनए बेसिकली है क्या और इस स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। ठीक है। और इसके अलावा हम आरएनए के बाद, इस स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद, फिर हम रेप्लिकेशन को डिटेल से देखेंगे कि रेप्लिकेशन का प्रोसेस कैसे होता है। स्टूडेंट्स, राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए that is basically a polymer of ribonucleotide. ठीक है। In case of DNA, it was a deoxyribonucleotide, but in case of RNA, it will be a ribonucleotide, which is of with a base pair of adenine, uracil, guanine, and cytosine. Again, you all very well know that thiamine will be replaced by uracil in case of RNA, and all these bases are joined together by 3 to 5 prime phosphodiester bonds. ठीक है। So in this case thiamine is actually absent. Now we will come to the process कि DNA को अगर हम सिंपली अंडरस्टैंड करना चाहे तो DNA इज एक्चुअली अ मास्टर प्लान। ठीक है। इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशंस, इट इज द ब्रेन विच हैज ऑल द इंफॉर्मेशन इन इट, while the RNA is the working copy of that master plan. What has been stored in DNA will be copied in the form of RNA. ठीक है। So we call that is transcription. The copy of DNA into RNA, we call it as transcription, while the copy of from RNA to protein, the process we called as a translation. सही है। So फिर हम जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है, in that case we are looking for a coding RNA, which is we called as mRNA, and that mRNA translated to proteins. So in case of mRNA, in case of transcription, we received RNA which contain both the coding and non-coding region. But at the time of translation, we will need a coding region that could be translated to protein. नॉन-कोडिंग आरएनएज कौन कौन से हैं? इसमें हमारे पास राइबोसोमल्स आरएनएज हैं, ट्रांसफर आरएनएज है, और एडिशनल और भी हमारे पास स्मॉल आरएनएज है जो कि सर्टेन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर परफॉर्म कर रहे हैं, कैटालिटिक और रेगुलेटरी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो बेसिकली ट्रांसलेट नहीं होते। ठीक है। जैसे कि स्मॉल आरएनए, न्यूक्लियोलर आरएनए वगैरह, वो हम आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस में। वो जो है वो नॉन कोडिंग है और वो आगे ट्रांसलेट नहीं होते। ओनली एमआरएनए है जो कि कोडिंग है और उसमें आगे ट्रांसलेट होना है। जेनेटिक एक्सप्रेशन इज हाईली सेलेक्टिव। इसका क्या मतलब हुआ? हमारे पास जो जीनोम है, सेल के अंदर जो जीनोम है, वो बहुत ज्यादा, मतलब आपको पता है कि अगर ह्यूमंस का आप देखें तो थाउजेंड्स बिलियंस ऑफ बेस पेयर्स है, लेकिन ओनली 2% of the total genome is transcribed and translated to proteins. Remember, only 2%, जो कि जिसको हम प्रोटीन्स में कन्वर्ट होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि now it's going to be a functional part. Bacteria and archaea, a single mRNA molecule may code for one or several polypeptide chain. ठीक है। So it is possible in bacteria and archaea that a single mRNA which contain the code can be expressed in one or several polypeptide chain. If it carries the code for only one polypeptide, the mRNA is monocistronic. Yani if it is a single a code
which is coded for a single polypeptide, we call it as monocistronic. And if the codes for two or more different polypeptides, the mRNA is polycistronic. लेकिन अगर वही एक कोड है जो कि दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स बना रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीसिस्ट्रोनिक. In eukaryotic, most mRNA are monocistronic. इसका मतलब यह है कि a single polypeptide, a single code will be responsible for one polypeptide. While in bacteria, there are certain species in which a single code may be responsible for more than two different polypeptides. So that is again the representation, or for explanation purpose, that we have a region which contain a gene, and that gene is responsible for a single polypeptide, while in another case we have more than one regions which are responsible for two or more than two polypeptides chain. Now, what are the requirements of RNA transcription? As we have studied in replication, that replication have some requirement for starting point, stopping point, certain regulatory proteins, helicases, topoisomerases. In the transcription, we also need certain requirement. Whenever you want to transcribe a gene, so it will contain a starting point, it will contain a stopping point, regulatory proteins will be there, RNA polymerase should be there, and DNA template to be copied. Okay, and in replication, the addition we used to have a DNA polymerase, while in transcription we will need an RNA polymerase. So the primary transcript is modified. Remember, when the DNA is copied in the form of mRNA, that mRNA which are produced from DNA are usually exact copy of what that has been present in DNA. But after that RNA will lead certain modification, and we call that as post-transcription modification. And these modifications are very, very important, because it should add a terminal addition of poly A tail should be there. Means at the end of that gene RNA, there will be a continuous basis of adenine, while at 5' end there should be certain caps, like methylation will be taking place. Similarly, base modification will take place, methyl group will be added to it, certain trimming process will happen to form a complete coding region of mRNA. And for that purpose, what they will do, that they will remove the introns during post-translational modifications, and because that intron is the non-coding region, and we don't need introns to have in our final product of mRNA, which will go from the nucleus to outside the cytoplasm, where it will be translated into proteins. While we will join that during the post-translational modification, exons will be joined together, इसको आपस में जोड़ दिया जाएगा और एक complete coding region बन जाएगा. Now all these processes which will take place will be called as post-transcriptional modifications. And remember, without post-transcription modification, translation could not be happened, because if it is not modified, if the introns regions are not removed, then there is no question that that region could be transcribed into protein.
So that will convert the inactive primary transcript into a functional molecule. वही बात है कि अगर ये इसमें ये वाली मॉडिफिकेशंस नहीं होंगी तो बेशक आपके पास आरएनए बन जाए डीएनए से, लेकिन दैट विल बी इनएक्टिव until and unless that modifications are done, then it will be into a final product form which we call as a functional molecule. Now structure of RNA. Primary structure of RNA. The primary structure of RNA is defined as the number and sequence of ribonucleotide in the chain. जैसे हम प्रोटीन्स को जब स्टडी कर रहे थे फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसमें हम सिंपल प्रोटीन्स की बात कर रहे थे या प्राइमरी प्रोटीन के, जिसमें हम कह रहे थे कि हम अमाइनो एसिड की सीक्वेंस और उसकी कंपोजिशन उसमें देख रहे होते हैं. सो सेम इज द केस इज द नंबर के कितने अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद है इसके अंदर और उसका सीक्वेंस क्या है इन द चेन, दैट विल बी एज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए. Each linear strand is held together by ribonucleotides bound to each other by 3 to 5 phosphodiester bond joining 3' hydroxyl group of one nucleotide with the 5' hydroxyl group of the next. So it is almost similar to that of the DNA. Where ribonucleotide, in that case that was deoxyribonucleotide, here is ribonucleotide, and that the bond formation will be the same, that is 3,5 phosphodiester bond, because of 3' hydroxyl group and the 5' hydroxyl group will form a phosphodiester bond in between them. The product of transcription of DNA is always a single stranded RNA. So जो भी हमारे पास आउटकम आएगा ट्रांसक्रिप्शन के बाद डीएनए, यानी डीएनए से जो आरएनए बनेगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा. सो द सिंगल स्ट्रैंडेड टेंड्स टू एज्यूम अ राइट हैंडेड हेलिकल कन्फर्मेशन डोमिनेटेड बाय बेस टेकिंग इंटरैक्शंस. सो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा आरएनए दैट विल बी राइट हैंडेड, और इसमें हमारे पास ए फॉर्म बनाएंगे मोस्टली, हम आगे देखेंगे, और बेस टेकिंग इंटरैक्शन होगी सेम एज इन केस ऑफ डीएनए. सो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है आरएनए का, जिसमें बेस पेयर्स अटैच्ड है और इसने जो है वो कॉन्फ़िगरेशन राइट हैंडेड कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ली हुई है. नाउ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए. एनी सेल्फ कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस इन द मॉलिक्यूल प्रोड्यूस मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. So the secondary structure of RNA involve various coil formation of the polyribonucleotide chain. जब कोई भी सेल्फ कंप्लीमेंट्री, जब दो सीक्वेंसेस आपस में कंप्लीमेंट्री हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड्स बना के कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देंगे. सो वो बॉन्ड्स क्या हो सकते हैं, these coil structures are stabilized by hydrophobic interaction between purines and pyrimidine bases. सो एडेनिन, गावानिन या साइटोसिन और यूरोसिल के दरमियान जो भी बेसिस है वो बेसिकली प्यूरिन और पैरामिडिन जो बेसिस है वो आपस में ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन करेंगे जो इसको स्टेबलाइज करेंगे. दीज आर इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन गावानिन एंड साइटोसिन एंड एडेनिन एंड यूरोसिल. सिमिलरली इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन भी होगी गावानिन साइटोसिन और एडेनिन यूरोसिल के दरमियान. द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर सेम एज इन डीएनए फॉर गावानिन साइटोसिन व्हाइल एडेनिन पेयर विद यूरोसिल. तो इसमें हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन होगी बॉन्डिंग की वो जिस तरह डीएनए में थी, गावानिन साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड थे, व्हाइल एडेनिन और यूरोसिल के दरमियान जो है वो हमारे पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड थे. लेकिन ओकेजनली इट इज पॉसिबल दैट थायमिन रेसिड्यू इज प्रेजेंट इन सम आरएनएस. वन डिफरेंस is that base pairing between guanine and uracil residue is allowed in RNA. So that is one exception in case of RNA, that in few cases guanine and uracil are allowed to form a base pairing in between them. When complementary sequence in two single strand of RNA
or within a single strand of RNA that folds back on itself to align the residue pair with each other. The pairs strain in RNA are RNA DNA duplex are anti-parallel as in DNA. सो ये जो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस बनेंगे, या ये हो सकता है कि दो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड के दरमियान कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस बन जाए, वो एक दूसरे के साथ पेयर कर लें क्योंकि वो क्या होगी, कंप्लीमेंट्री होंगे। या फिर ये हो सकता है कि पेयर स्ट्रैंड जो होते हैं, जैसे कि आरएनए जो बन गया है और डीएनए जो है ये मिलकर एक आपके पास पेयर स्ट्रैंड्स बना ले और ये दोनों पेयर एंटी पैरेलल होंगे, जैसे कि हमारे पास डीएनए में है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम और फिर दूसरी तरफ से 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड बनती है। When two strands of RNA with perfectly complementary sequence are paired, the predominant double-stranded structure is in A-form right-handed double helix. So जब ये दो RNA आपस में completely complementary होंगे तो वो एक स्ट्रक्चर जो सबसे ज्यादा predominantly बनेगा, that is A-form configuration. हमने DNA का स्ट्रक्चर पढ़ा था, right-handed A-form double helix स्ट्रक्चर बनेगा जो कि RNA के दरमियान बनेगा। ठीक है, सिमिलरली RNA DNA डुप्लेक्स भी बन रहा है जब आपके पास कॉपी बन रही होती है RNA की, तो उस वक्त वो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है DNA के साथ। Z-form helices have been made in the laboratory. हमने DNA में पढ़ा था कि ड्यू टू हाई साल्ट कंसंट्रेशन जो है DNA या RNA जो है आपके पास Z-form की कंफिगरेशन वो अचीव कर लेती है, Z-form कंसंट्रेशन बना लेती है, जबकि B-form जो है वो RNA में कहीं भी अभी तक मुशाहिदा नहीं किया गया। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो बन रहा है हमारे पास, हम कह रहे हैं कि कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस है और ये जब आपस में अगर तो क्लोज कोई सीक्वेंस में आपके पास आ गए तो वो क्या कर सकते हैं, कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस वो आपस में फोल्ड बैक होके आपके पास हेयर पिन लूप बना सकते हैं जिस तरह इसमें दिखाया गया है। ठीक है, या अगर कोई मिसमैच आ गया, आपके पास कोई बेस पेयर मिसमैच आ गया तो दैट कैन रिजल्ट इन अ बल्ज और इंटर लूप। ठीक है, जैसे इस केस में दिखाया गया, दैट इज अ काइंड ऑफ मिसमैच ओवर हियर। सही है, और यहां पे क्या है, ये देखें, ये बल्ज बना रहा है क्योंकि एडेनिन के अगेंस्ट जो है कोई प्रॉपर यूरासिल आना चाहिए था, या मिसमैच हुआ हुआ है, यहाँ पे कोई आया नहीं है। ठीक है, कोई अनमैच हुआ हुआ है या अवेलेबल नहीं है यूरासिल, तो यहाँ पे एक बल्ज बन गया। यहाँ पे सिमिलरली मिसमैच हो गया तो इंटरलूप बन गया। यहाँ पे क्या हो गया कि कुछ रेजिड्यूज जो हैं दैट इज पैलिंड्रोमिक होते हैं, सेल्फ कंप्लीमेंट्री होते हैं, तो वो आपस में जो है वो टर्न अराउंड करके फोल्ड बैक होके अपने ऊपर ही फोल्ड बैक होके, हालांकि ये देखें ये आपके पास एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है आरएनए का, लेकिन यहाँ पे ये देखें कंप्लीमेंट्री हो गए तो उसने खुद ही अपना आपको जो है वो क्या कर लिया, लूप बना लिया। ठीक है, ऊपर अपने ऊपर ही फोल्ड होके लूप बना लिया, वी कॉल्ड इट एज हेयर पिन लूप। तो ये हमारे पास अक्सर पीसीआर जब रन करते हैं तो इस तरह के मसाइल आ जाते हैं जिसकी वजह से रिजल्ट पे फर्क पड़ता है, हेयर पिन लूप फॉर्मेशन हो रही होती है। सो वो एक अलग स्टोरी हम बाद में डिस्कस कभी करेंगे। सो ब्रेक्स इन द रेगुलर ए फॉर्म हेलिक्स caused by mismatch or unmatched bases in one of the ball strain are common and result in bulges or interloop. सो जब ये कोई मिसमैच या होगा तो ये प्रॉब्लम्स होंगी, या बल्जेस बनेंगे या इंटरलूप बनेगा, या अगर हेयर पिन लूप फॉर्म बिटवीन नियर बाय सेल्फ कंप्लीमेंट्री पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। सो नियर बाय अगर सेल्फ कंप्लीमेंट्री रीजन्स है और ये फोल्ड बैक हो गया तो ये हेयर पिन लूप बना लेगा। ठीक है, अब extensive base pair helical segments are formed in many RNAs and thus resulting hairpin are the most common type of secondary structure in RNA। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर वो एक्सटेंसिवली आपके पास इसी तरह पैलिंड्रोमिक रीजन्स आ गई है तो वो क्या करेगा, हेयरपिन लूप्स बनाएगा और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर इस तरह की आपके पास बन के आएंगे। स्पेसिफिक शॉर्ट बेसिस सीक्वेंस सच इज यूरासिल साइटोसिन guanine are often found at the end of RNA hairpin and
are known to form particular tight and stable loops. So ये एक इंडिकेशन है कि जहां पे आपके पास यूरासिल, साइटोसिन, गावानिन के शॉर्ट बेस सीक्वेंस मौजूद होंगे वहां पे नॉर्मली एक स्टेबल और टाइट लूप आपके पास बनता है, एक हेयर पिन जो है वो बनता है, जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करा रहा होता है। इसके बाद बारी आती है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। ऑफ कोर्स द टर्शरी स्ट्रक्चर विल बी मोर कम्प्लेक्स देन the secondary structure. The tertiary structure of RNA involves the folding of the molecule into three-dimensional structure. The cross-linking also occurs at various sites, stabilized by hydrophobic and hydrogen bond producing a compactly coiled globular structure. So ये जो आपके पास tertiary structure बनेगा, that will be during the cross-linking किस वजह से इसकी आएगी tertiary structure की, जब इसके दरमियान हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन आएंगी या हाइड्रोजन बॉन्ड जो है डिफरेंट बेस पेयर्स के दरमियान रैंडमली बनेंगे। तो वो इस तरह से आपके पास थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर बनेगी। जैसे कि इस केस में आप देख सकते हैं, ये आपके पास क्या है, गावानिन है, साइटोसिन है। तो इसमें आपके पास राइबोज जो है, एक राइबोज रेजिड्यू राइबोन्यूक्लियोटाइड्स और दूसरे का 2' हाइड्रोक्सिल पे राइबोज जो है दैट विल फॉर्म्ड अ अनयूजुअल बेस पेयर पैटर्न, बॉन्ड्स बनाएंगे। तो उसकी वजह से ये आपके पास क्या होगा, अनयूजुअल बेस पेयरिंग की तरफ ये ले जाएगा और ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपको बना के दे देगा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ आरएनए की तरफ आते हैं। तो जैसे आप सबको मालूम है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए फाउंड इन ह्यूमन बीइंग. These are messenger RNA or mRNA. Similarly, there are transfer RNA, which we call as soluble RNA or tRNAs, and we have a ribosomal RNA or rRNA. ठीक है, so 3 types of RNA. The main function of each of these RNA is protein synthesis. RNA से हमारा क्या काम है कि हमें प्रोटीन बना के दे. So mRNA, transfer RNA and ribosomal RNA, all these are involved in protein synthesis. Now we will come to the difference between RNA and DNA. अब हमने RNA के स्ट्रक्चर को पढ़ लिया, DNA को पढ़ लिया, तो आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इन दोनों के दरमियान डिफरेंस के बारे में. अगेन RNA सिंगल स्ट्रैंडेड है, DNA डबल स्ट्रैंडेड है, एक्सेप्ट इन फ्यू वायरसेस. जबकि RNA सिंगल स्ट्रैंडेड है एक्सेप्ट इन सम वायरसेस. RNA have ribose sugar while DNA have deoxyribose sugar. Bases आप सबको मालूम है, एडेनिन पेयर विद यूरासिल, इसमें एडेनिन पेयर्स विद DNA में एडेनिन पेयर करता है थायमिन के साथ. जबकि RNA में एक एक्सेप्शन है. DNA में हमने कहा चारगाफ रूल कहता है कि प्यूरीन्स आर इक्वल टू पैरिमिडीन्स, जबकि यहाँ पे चूंकि सिंगल स्ट्रैंडेड है सो प्यूरीन विल नेवर बी इक्वल टू पैरिमिडीन्स. Regions having complementary nucleotides pairs and form hairpin loop-like structure and helicals. क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड है, अगर न्यूक्लियोटाइड कंपेरेबल कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस मिल गए कंपेयर एक दूसरे के करीब, तो वो क्या कर सकते हैं, हेयर पिन लूप फॉर्मेशन कर सकते हैं. जबकि कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं डीएनए में और ये कभी भी जो है वो हेयर पिन लूप वगैरह नहीं बनाते. आरएनए जो है हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है कुछ वायरसेस में, जबकि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. लेंथ ऑफ आरएनए इज शॉर्ट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली फ्यू थाउजेंड न्यूक्लियोटाइड. सो क्योंकि आरएनए एमआरएनए वगैरह हमारे पास जो है वो सिर्फ एक जीन को कॉपी किया होता है डीएनए से, तो वो एमआरएनए कोडिंग वो पार्ट होता है और नॉन कोडिंग होता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा हार्डली थाउजेंड्स न्यूक्लियोटाइड हो सकता है. जबकि लेंथ ऑफ डीएनए जो है वो बहुत ज्यादा लंबा होता है, दैट कुड बी अ मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. 3 types of RNA present, which is mRNA, rRNA and tRNA, जैसे हम अभी पढ़े हैं. जबकि DNA जो है that is only in one form in any organisms. ठीक है, mRNA occur in nucleolus, ribosomal RNA and tRNA occur in the cytoplasm. जबकि DNA जो है that will only occur in nucleus and nucleolus, while it is also present in extrachromosomal DNA in mitochondria and chloroplast. So that is
difference between RNA and DNA. Messenger RNA की तरफ आते हैं. Messenger RNA that is comprise only about 5% of total RNA in the cell. Most of the heterogeneous types of RNA in size and base sequence. Heterogeneous क्यों है size और base sequence में? क्योंकि मुख्तलिफ जीन्स मुख्तलिफ साइज के हो सकते हैं. वो जब कॉपी होके mRNA उसमें से बनता है तो वो डिफरेंट होगा, वो वेरिएबल होगा. ठीक है, जबकि tRNA या राइबोसोमल RNA जो होते हैं वो इतने हेट्रोजीनियस नहीं हो सकते. दैट कुड बी almost similar to one another, लेकिन राइबोसोमल mRNA will be most heterogeneous of all the RNA. mRNA carries genetic information from DNA for use in protein synthesis. So you all know that in genetic DNA is the master plan. यहाँ से सारी information ये copy करेगा. If the mRNA carries information from more than one gene, it is said to be polycistronic. ठीक है, और polycistronic mRNA is characteristics of prokaryotes. तो अगर ये एक से ज्यादा जीन में से mRNA एक्सट्रैक्ट करता है तो हम इसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहते हैं, और ये जो क्वालिटी है प्रोकैरियोट्स में होती है. जबकि mRNA कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम जस्ट वन जीन, इट इज सो सेड टू बी मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूकैरियोट्स. तो ये वाली जो क्वालिटी है सिर्फ यूकैरियोट्स में मौजूद होगी. The mRNA molecules are formed with help of DNA template strand 3'' during the process called transcription. So जब ये mRNA DNA में से बनेगा तो of course mRNA जब DNA strand को read करेगा that will be read from 3' to 5', जबकि जो mRNA बनेगा that will be from 5' to 3' क्योंकि एंटी पैरेलल होंगे. ये बात आप ज़हन नशीन रखिएगा. ठीक है, तो डीएनए टेम्पलेट का होना जरूरी है क्योंकि मास्टर प्लान है, इसी को कॉपी करके वो mRNA बनाएगा. The mRNA carries a specific sequence of nucleotide in triplet which we called as codon, responsible for synthesis of a specific protein molecule. So जो भी mRNA हमारे पास बनेगा ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस लेकर आएगा और न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस लेके आएगा जो कि ट्रिपलेट के फॉर्म में मौजूद होंगे, और वो ट्रिपलेट जो है उसको हम कोडॉन कहेंगे. एंड दैट कोडॉन विल, यू ऑल नो दैट ईच कोडॉन इज स्पेसिफिक फॉर अमाइनो एसिड्स. ठीक है, सो टू स्पेशल स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास mRNA की. वन इज अ पोली ए टेल जो कि मौजूद होता है अबाउट 22 to 50 रेजिड्यूज इन लेंथ हो सकता है. ठीक है, सो पोली ए टेल दैट विल बी 3' पे मौजूद होगा. ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है, पोली ए टेल का क्यों ऐड करते हैं हमें ये इसकी टेल लगाने की जरूरत क्यों पेश आई है, बिकॉज इट provide the intracellular stability of the specific mRNA by preventing the attack of 3' exonucleases, because exonucleases will be present in the cell. So to prevent the attack of the exonucleases, that poly A tail will be added to the 3' region, and that will also provide to the stability to the mRNA. सिमिलरली 5' पे कैपिंग होती है, और वो क्या होता है कि मिथाइलेशन हो जाती है गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट की. सो वी कॉल इट 7-methyl गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो दैट कैप इज probably involved in recognition of protein biosynthetic machinery, and it help in the stabilizing the mRNA by preventing the attack of 5' exonuclease activity. So इसकी भी 2-3 functions हैं. एक ये है कि जब 5' methyl guanosine ट्राइफॉस्फेट कैप लग जाए तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि जो mRNA की ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी, जो mRNA बना होगा जब उसमें से प्रोटीन बनेगा तो mRNA का रिकॉग्निशन साइड इसको रीड कर ये किस साइड से बनेगा, 5' से. सो 5' पे मिथाइल गुआनोसिन में maybe because of it will help in recognition by the ribosomal RNA
कि उसके साथ अटैच होके और उसमें से प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड्स बनाएं। ठीक है, पहला फंक्शन तो इसका ये हो सकता है कि बायोसिंथेटिक मशीनरी को रिकॉग्निशन में हेल्प करवाएगा कि यहां से हमने ट्रांसलेशन स्टार्ट करनी है। दूसरा ये करेगा कि स्टेबलाइजेशन देगा एमआरएनए को, और तीसरा वही बात कि 5 प्राइम से भी इसको बचाना है हमें एक्सोन्यूक्लियोसिस एक्टिविटी से। सो द प्रोटीन सिंथेसिस बिगिन एट 5 प्राइम एंड ऑफ द कैप्ड स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए। सो हमेशा जब इस एमआरएनए में से ट्रांसलेशन होगी यानी प्रोटीन सिंथेसिस होगी, दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 5 प्राइम एंड। सो अब हम स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं एमआरएनए की। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एमआरएनए व्हिच आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, सो दैट एमआरएनए after going through a post-transcriptional modification हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आया है कि इसके साथ 5 प्राइम कैप है, फिर उसके बाद लेडर रीजन है, और इसके बाद आपके पास स्टार्ट कोडॉन है एडेनिन, यूरासिल एंड गावानिन, और फिर आपके पास आपका जो भी सीक्वेंस है जीन का, और फिर यहाँ पे स्टॉप कोडॉन है यूएजी, यूरासिल एडेनिन गावानिन, फिर ट्रेल रीजन है एंड दैट इज पोली ए टेल। ठीक है, सो ये हमारे पास एमआरएनए आ गया जो कि कोडिंग रीजन पर मुश्तमिल है। सो क्या करेगा जब राइबोसोमल मशीनरी है या बायो मशीनरी है जिसने प्रोटीन बनानी है इस एमआरएनए में से, वो इस कैप को रिकॉग्नाइज करेगा और यहाँ से इसका ये बफर रीजन है, इसके बाद ये स्टार्ट कोडॉन को जैसे ही रीड करेगा यहाँ से पॉलीपेप्टाइड या अमाइनो एसिड की जो क्या है स्टार्ट हो जाएगी प्रोडक्शन। अब अमाइनो एसिड अटैच होगा और पॉलीपेप्टाइड बनता चला जाएगा। ठीक है, अल्टरनेटली स्टॉप कोडॉन विल रीच। ड्यूरिंग दैट टाइम दैट कैपिंग विल protect that mRNA from exonuclease activity. Similarly, that poly A tail will also protect the same mRNA from exonuclease activity from 3' end. Ribosomal RNA क्या है? That is about 80% of the total RNA in the cell. So वो हमारे पास 5% था mRNA और हेट्रोजीनस था क्योंकि हर जीन के स्ट्रक्चर वेरी कर सकता है, जबकि ये हमारे पास 80% है। There are 3 distinct sizes species of RNA which is 13S, 16S and 5S in prokaryotic cell as we have seen in the this diagram, while in eukaryotic cytosol there are 4 RNA species which are 28S, 18S, 5.8S and 5S. Where S क्या है हमारे पास, that is the Swedberg unit for sedimentation rate which is determined by size and shape of the particle. So जब हम इसको high centrifuge करेंगे तो that will settle down at different rate. So जिसका size और shape size बड़ा होगा तो वो ज़रा relatively जल्दी settle down हो जाएगा, जिसका size छोटा होगा वो slowly settle down होगा। The basis of that we will further इसका size जो है हम determine करते हैं। RNA are found on ribosomes. So ये इसलिए हम इसको ribosomal RNA कहते हैं। It is on the ribosomes that the mRNA and rRNA interact during the process of protein synthesis. So ये हमारे पास क्या हो जाता है, आरएनए हमारे पास राइबोसोम्स पर मौजूद होते हैं जहाँ पे एमआरएनए आता है साइटोप्लाज्म में और वहाँ पे ये इंटरेक्ट करता है उसके साथ आरएनए के साथ, और फिर ये प्रोटीन सिंथेसिस वहाँ पे स्टार्ट होती है। ट्रांसफर आरएनए क्या है? दीज आर आल्सो कॉल्ड एज सॉल्युबल आरएनए, tRNA or transfer RNA are the smallest, which is 4S of the 3 major types of RNA molecule. So ये सबसे smaller RNA है बाकी दो में से। There are at least one specific type of tRNA molecule for each of the 20 amino acid commonly found in protein. So 20 amino acids है, so हर एक के लिए एक specific tRNA मौजूद है। Together tRNAs make up about 15% of the total RNA in the cell. So again जब हम
टोटल क्वांटिटी की बात करें सेल के अंदर तो सबसे कम हमारे पास mRNA है जो और हेट्रोजीनियस भी है, जबकि सबसे ज्यादा हमारे पास राइबोसोमल RNA है और स्मॉलेस्ट जो हमारे पास है दैट इज ट्रांसफर RNA। ठीक है, सो दैट इज काउंट फॉर 15%। द tRNA molecule contain a high percentage of unusual bases, for example dihydrouracil। सो ये हमारे पास कुछ इनके अंदर जो अनयूजुअल बेसिस है वो उसमें कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा है। have extensive interchain base pairing, so that's why interchain base pairing इसके दरमियान बहुत होती है, यानी विद इन द RNA इसके अंदर बेस पेयरिंग के अंदर आपस में जो है इंटरेक्शन या बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स भी होता है। और दूसरा ये कि इसके अंदर अनयूजुअल बेसिस है जिसके साथ यानी एक एडिशनल ग्रुप अटैच हुआ होता है, जैसे इन केस ऑफ डाईहाइड्रोयूरासिल। स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक अगर हम tRNA की देखें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है, द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ऑल द tRNA मॉलिक्यूल अलाउ एक्सटेंसिव इंट्रास्ट्रैंड complementarity that generate a secondary structure। so आपस में ही सेल विद इन द स्ट्रैंड जो है कंप्लीमेंटेरिटी होने की वजह से बॉन्डिंग बनती है, इंटरेक्शन होती है जिसकी वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। ईच सिंगल tRNA शो एक्सटेंसिव इंटरनल बेस पेयरिंग एंड रिक्वायर अ क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, सो द स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द बेसिस and is a consisting feature। so within the base pair within their structure जो आपके पास RNA का होता है, बेस पेयर जो इसके अंदर होते हैं वो बेस पेयर आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो वो क्या कर लेते हैं, एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लेते हैं, क्लोवर लीफ लाइक, जो जैसे आप के पास सर्टन प्लांट्स के पत्ते होते हैं उस तरह की कॉन्फ़िगरेशन इख्तियार कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन। ठीक है, सो दैट विल फॉर्म बॉन्ड इन बिटवीन देम, सो दैट विल रिजल्ट इन द clover leaf structure formation, we call it as secondary structure। all tRNA contain 5 main arms or loops which are as follows। so हमारे पास ये 5 इसके different arms या loops हैं। एक हमारे पास इसका एक्सेप्टर आर्म्स है, ठीक है, और फिर इसके बाद ये एंटीकोडॉन आर्म्स है, यहाँ से ये अमाइनो एसिड्स को रीड करके पकड़ के लाता है एक्सेप्टर आर्म से, जबकि एंटीकोडॉन आर्म्स जो है वो यहाँ से कोडॉन को रीड करता है, जो mRNA यहाँ पे मौजूद होगा उसको रीड करेगा। और फिर हमारे पास क्या है, डी आर्म्स है और टी साई आर्म है और ये एक्स्ट्रा वेरिएबल आर्म है। इसके अपने हर एक के अपनी अपनी फंक्शंस है, लेकिन फिलहाल आप लोगों ने एंटीकोडॉन और एक्सेप्टर आर्म को याद रखना है, बिकॉज दैट विल बी रिपीटेड इन केस ऑफ आगे हम जब ट्रांसक्रिप्शन के पूरे प्रोसेस को पढ़ेंगे। अब आरएनए के फंक्शंस की तरफ थोड़ा सा आते हैं। आरएनए का स्ट्रक्चर फंक्शन तो ये है कि आरएनए बेसिकली मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है आपके पास राइबोसोम्स का, क्योंकि राइबोसोम्स के ऊपर ये आरएनए मौजूद होते हैं, राइबोसोमल आरएनए। लेकिन ये यहीं तक महदूद नहीं है कि इसका सिर्फ स्ट्रक्चर रोल हो, इनका कैटालिटिक रोल भी है। RNA in ribosome has a peptidal transferase activity। सो ये क्या करते हैं, इसकी पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी है जो कि एक्चुअली क्या करता है, दैट इज एंजाइमेटिक एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन अमाइनो एसिड इन ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जैसे जैसे mRNA को रीड किया जाता है और उसमें से पॉलीपेप्टाइड अमाइनो एसिड आपस में अटैच हो जाते हैं कोडॉन रीजन को रीड करते हुए, तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनाया जाता है दैट इज एक्चुअली पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी। ठीक है, सो ये आरएनए ही है जो ये एक्टिविटी परफॉर्म करता है। और इसी तरह मेनी स्मॉल आरएनएज आर एंजाइम्स, वी कॉल दैट एज राइबोजाइम्स। ठीक है, रेगुलेटरी फंक्शंस क्या हैं इनके। recently discovered important new role for RNAs in normal cell is defense in plant in normal development of, for example small RNAs, micro RNAs वगैरह जितनी भी है, it has a role in defense in plant।
अब अगर हम इसको थोड़ा सा समराइज करें कि आरएनए के क्या फंक्शंस हैं, तो हमारे पास पहले नंबर पर mRNA है, वी कॉल इट एज मैसेंजर आरएनए, एंड इट हैज अ फंक्शन ऑफ ट्रांसलेशन मींस प्रोटीन सिंथेसिस और रेगुलेटरी रोल है. राइबोसोमल आरएनए इट will translation that is protein synthesis, catalytic role है, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेसिस मौजूद है. ट्रांसफर आरएनए क्या है, दैट इज ट्रांसलेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस अगेन. अब हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, इट इज अ प्रिकर्सर इन इंटरमीडिएट ऑफ मेच्योर एमआरएनए एंड अदर आरएनए. सो ये एज ए प्रिकर्सर इंटरमीडिएट के तौर पे काम करता है मेच्योर एमआरएनए और कुछ अदर आरएनएस बनाने में. और इसके बाद स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए है, दैट इज द सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स. टीआरएनए प्रोसेसिंग, इनका कैटालिटिक रोल है ट्रांसफर आरएनए के प्रोसेसिंग में. और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, इसका क्या रोल है, एमआरएनए प्रोसेसिंग, पॉली ए टेल एडिशन, और इसका कैटालिटिक रोल होगा. ठीक है, सो ये एमआरएनए की प्रोसेसिंग और उसमें पॉली ए टेल ऐड करने के लिए यूज होता है. स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, इट इज राइबोसोमल आरएनए प्रोसेसिंग में हेल्प करता है और मिचोरेशन में हेल्प करता है, और मिथाइलेशन जो 5' मिथाइल कैप ऐड होता है उसमें ये हेल्प करता है. रेगुलेटरी आरएनएस का क्या फंक्शन है, रेगुलेटरी आरएनएस में स्मॉल आरएनए है और माइक्रो आरएनएस है. दीज आर द रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. सो ये जो आरएनएस है दैट दीज हैव द फंक्शन इन रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. जीन्स जो है, वन जीन इज responsible for one protein in case of eukaryotes, but that could happen in prokaryotes, can have a different stories. Transcriptions जो है that read a gene from the DNA and it will form an RNA. okay, so genes को read करेगा और बिकॉज डीएनए इज अ मास्टर प्लान, और फिर उसमें से कॉपी बनाएगा जो कि हमारे पास आरएनए होगा, और वो आरएनए पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के बाद एमआरएनए बन जाएगा जिसमें कोडिंग रीजन सिर्फ मौजूद होंगे. उसके बाद बारी आ जाएगी कि उस कोडिंग रीजन या जो एमआरएनए है वो साइटोप्लाज्म में आएगा, और साइटोप्लाज्म में हमारे पास क्या आ जाएगा, उसमें से प्रोटीन्स जो है वो बन जाएंगी. सो वो आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा. So that was all for today, and inshallah in next lecture we will study in detail about the process of transcription and the factors which are involved in transcription. वो हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे. अगले लेक्चर तक इंशाल्लाह इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.